اس کے جانے کے بعد اسی کرسی پہ بیٹھے نورات نے موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔ یوسف خان صاحب، السلام علیکم۔ وہ کافی دیر بعد فون اٹھا پائے۔ وعلیکم السلام یوسف صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، وہ چند رسمی فکروں کے بعد کہنے لگی۔ آپ نے 2-2.5 ماہ قبل مجھے کال کر کے کہا تھا کہ میں زمر کو سمجھاؤں تاکہ وہ شادی کر لے۔ جی، میں یہ ہر اس شخص سے کہتا ہوں جو زمر کے قریب ہو۔ وہ سنجیدہ اور قدرے خوش تھے۔ جواہرات کا ٹاپس کو مسلتا ہاتھ رکا۔ اس کو ذرا دیر کو سوچا اس نے۔ اگر آپ میرے گارڈ کو اس نیکلس کے لیے تلاشی والی بات پہ ہم سے خفا ہیں تو میں معذرت کرتی ہوں۔ وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اوکے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کل رات فنکشن میں بھی میری زمر سے بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، امید ہے وہ جلد مان جائے گی۔ بڑے ابا چوکے۔ تو آپ نے بات کی تھی زمر سے؟ جی، میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا، بس موقع کل رات ملا۔ اچھا، ان کے لہجے کی سرد مہری زائل ہونے لگی۔ زمر نے مجھ سے صبح بات کی تھی، وہ شادی کے لیے رضامند ہے۔ گڈ، مگر مجھے حیرت نہیں ہے، میں ناکام نہیں ہوا کرتی۔ آپ کا شکریہ مسز کاردار، مائی پلیئر۔ مسکراتے ہوئے بس ستور ایئرنگ پہ انگلی پھیرتے وہ کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ کوئی رشتہ ڈھونڈا آپ نے؟ نہیں، ابھی تو نجات سے بات کی ہے، وہ شاید کوئی بتائے۔ اوکے، میں نے بھی چند ایک لوگوں سے کہہ رکھا ہے۔ 2 رشتے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ تفصیلات جاننا چاہیں گے؟ جی بتائیے۔ بڑے ابا بمشکل اپنی آواز کی ضعیف خوشی چھپا رہے تھے۔ ایک سیشن کورٹ کے جج صاحب کا رشتہ ہے، بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے اور تینوں بچے بورڈنگ میں پڑھتے ہیں۔ ذرا دیر کو وقفہ آیا۔ بڑے ابا کی لائن خاموش تھی۔ دوسرا رشتہ میری کمپنی کے ایک عہدے دار کا ہے۔ پہلی شادی کم عمری میں ہوئی تھی۔ وہ بیوی اور اس سے ہوئے دونوں بیٹے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ صاحب خود اسی شہر میں ہیں۔ اکیلا، اچھا گھر ہے، عمر زیادہ ہے، 50 سے اوپر۔ آپ سن رہے ہیں؟ جی ہاں۔ ان کی آواز بس وقت نکلی تھی اور اس میں بھی تکلیف تھی۔ یوسف صاحب، حقیقت پسندی سے کام لیجیے۔ آپ کی بیٹی 30-32 سال کی ہے اور اس کے گردے ضائع ہو چکے ہیں، بیمار ہے۔ ایسے میں کسی نوجوان خوبصورت لڑکے کا رشتہ ملنا تو معجزہ ہوگا، اور معجزے کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں، مگر وہ خود ہی رک گئے۔ کیا کہیں اب؟ ہاں، ایک شخص اور بھی ہے، ہاشم کی عمر کا ہے، ہینڈسم بھی ہے، پہلی بیوی مر چکی ہے۔ مگر کیا؟ بڑے ابا تیزی سے بولے۔ امید کی کرن چمکی تھی۔ مگر آپ کی کیا گارنٹی؟ آپ اسے شاید رشتہ ہی نہ کریں۔ اس نے ذرا سا وقفہ دیا۔ بڑے ابا بے چینی سے منتظر تھے۔ میں فارس کی بات کر رہی ہوں، اور بڑے ابا کو تو اتوار کے اس گرم دن میں لگنے والا دوسرا جھٹکا تھا۔ فارس؟ وہ اٹکے تھے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نیرد آج کل فارس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے، تو آپ اس سے زمر کی بات کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے اچھا آپشن آپ کو نہیں ملنے والا۔ مگر فارس کے لیے زمر؟ کیا زمر؟ اسے عدالت نے بری کیا ہے، اور اب زمر اس کو مورد الزام ٹھہرانا چھوڑ چکی ہے۔ پرانی باتوں کو بھول جائیے، اس نے خفگی سے ٹوکا۔ مسز کاردار آج سمجھ نہیں رہی۔ فارس کا؟ وہ ابھی رہا ہو کر آیا ہے، وہ خود مسئلوں میں گھرا ہے۔ ایسے میں آپ نے پہلے بھی اس کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، تب کیا وجہ تھی؟ وہ چپ سے ہو گئے۔ آپ شاید اس کو ہمیشہ سے اپنی بیٹی سے کم تر سمجھتے رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے، مگر وہ خود نہیں مانے گا، زمر بھی نہیں مانے گی۔ آپ مان جائیں تو وہ بھی مان جائیں گے۔ زمر کبھی بھی نہیں مانے گی، وہ تو اس کا ہمارے گھر آنا تک برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو شادی کے لیے بھی نہیں مانتی تھی، میں نے منا لیا نا۔ بہرحال میں فارغ کے ساتھ 2-4 روز میں آپ کی طرف چکر لگاؤں گی۔ آپ تینوں رشتے کے بارے میں سوچ لیں۔ 3 بچوں کا باپ جج، 55 سالہ کمپنی عہدیدار، یا فارس، اور اگر تینوں نہیں قبول تو اس دفعہ اپنی بیٹی کے مجرم آپ ہوں گے۔ ٹیک کیئر۔ مسکراتے ہوئے فون رکھ دیا اور بہت طمانینت سے کھڑکی کے باہر سبزہ زار کو دیکھنے لگی، جہاں افیونہ اپنی نگرانی میں ملازموں سے گملے رکھوا رہی تھی۔ جواہرات کا موسم زیادہ خوشگوار لگنے لگا تھا۔
सब ठीक जा रहा था। खुदाया तेरे नाम से अपना घर अब तक सलामत है, वरना दोस्त और दुश्मन हमारे एक जैसे हैं। रात खाने के बाद वो छोटे बगीचे वाले घर से बाहर निकले। सड़क किनारे चलते, कानों में सफ़ेद हैंड फ्री लगाकर वो मोबाइल को हाथों में पकड़े नंबर मिला रहा था। सादी, तुम्हारी हाशिम से बात हुई? शहरी ने कॉल उठाते साथ पूछा। एयरफोन्स में गूंजती उसकी आवाज़ में शदीद इज़्तिराब था। क्यों ना पहले आप मुझे ये बताएं कि आपकी हाशिम भाई से क्या बात हुई? वो सख्ती और दृष्टि से कहता कदम कदम चलता जा रहा था। मेरी बात? क्या मतलब? आपने उनको बता दिया कि मैंने उससे वो चुराया है जो उन्होंने हमसे चुराया था? मैंने? ऐसे नहीं, वो अटकी। वो मुझ पे चिल्ला रहा था, मुझे धमकी दे रहा था। मुझे मालूम भी नहीं कि मैं क्या कहती गई, बल्कि मैंने तो ये कहा भी नहीं कि तुमने, मगर आपने मेरी बात तो दोहरा दी ना उनके सामने। तेज से उसकी आवाज़ बुलंद थी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि मैंने पहली दफ़ा आप पे एतबार करके गलती की, बल्कि नहीं, एतबार तो उस दफ़ा भी नहीं किया था, बस काम कहकर गलती की। और इससे ये भी होता है कि शहरीन बेगम, आज से आप अकेली हैं। मुझे रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है कि सोनिया आपके साथ जाए या नहीं, इसलिए आप अपनी तमाम जंगें अकेली लड़ेंगी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे इस काम में फंसाया और मैं आपके इससे बड़े काम कर चुका हूँ, और ये काम मैंने आपको इसलिए दिया कि आप भी हाशिम भाई से इंतकाम लेना चाहती हैं। कम अज़ कम कहती तो यही रही हैं आप, लेकिन आज से हम एक टीम नहीं है। अल्लाह हाफिज़। ज़ोर से सुर्ख बटन दबाकर कॉल काट दी। आंखों में शदीद खफकी और गुस्सा लिए वो वापस घर की तरफ मुड़ गया। शेरिंग की 3-4 कॉल्स आईं, उसने सब काट दी, फिर तंग आकर फ़ोन साइलेंट पे लगा दिया। वापस अंदर आया तो अम्मी खामोशी से लाउंज में बैठी थी, टीवी चल रहा था। हुनैन पाँव ऊपर गिर के बैठी, हथेलियों पे चेहरा गिराए शौक से ड्रामा देख रही थी। अब वो सिर्फ वही ड्रामे देखती थी जो टीवी पे लग जाते। अलबत्ता अम्मी किसी गहरी सोच में थी। वो ईयरफोन्स उतारते हुए निज्जत के साथ धप से सोफे पे गिरा। वो फिर भी नहीं चौंकी। सादी ने पलके सेक्टर कर गौर से उनको देखा। निज्जत बहन, परेशान लग रही हैं आप? मासूमियत से पूछा। उन्होंने खफगी से उसको देखा। कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, बताएं, मैं हल कर लेता हूँ अभी आपका मसला। वो संजीदा होते हुए सीधा होकर बैठा। मैं सोच रही हूँ फारिस की शादी कर देनी चाहिए। हुनैन और सादी दोनों ने चौंक कर उनको देखा। वो सोच सोच कर बोल रही थीं। मुन्ना के माथे पर बल पड़े। मामू की शादी? मगर अम्मी, वो अभी तो बाहर आए हैं, उनको सांस तो लेने दें। हुनैन ठीक कह रही है अम्मी, वो पहले ही दूसरे चक्करों में हैं, उनको अभी तंग ना करें। चुप करो तुम दोनों, पता चलता नहीं है किसी बात का और माँ को मशवरे दे रहे हो। वो खफगी से कहकर उठ गईं और मेज़ पे रखे बर्तन उठाकर किचन में ले गईं। जब वो वापस आई तो वो दोनों भूल भाल कर टीवी देख रहे थे। बड़े अब्बा का फ़ोन आया था, कह रहे थे जुमर शादी के लिए मान गई है। फंक्शन में जाने और रिश्तेदारों से मिलने का उस पर मुसब्बत असर हुआ है। वो कुशन ठीक करके रखती सरसरी अंदाज में बता रही थी। हुनैन और सादी ने एकदम एक दूसरे को देखा। अच्छी बात है ना? निज्जत ने फालतू कुशन उठाकर बेडरूम की तरफ जाते पूछा। जी, हुनैन बेजारी से कहकर वापस टीवी देखने लगी। जी, सादी अलबत्ता धीमा सा बोला। चाहने के बावजूद वो खुश नहीं हो सका, कहीं कुछ गलत था। मैं दोस्तों के एक एक इम्तिहान से गुजरा हूँ, बिखर गया हूँ, कई रास्ते बनाता हूँ। कसरत कारदार पे अगली सुबह पहले से भी गर्म तुलू हुई थी। हाशिम बरामदे के स्टेप पे उतरता नीचे खड़ा खिड़की कार की तरफ जा रहा था। शोफर के सलाम का स्पार्क चेहरे और सर के खम से जवाब देता वो अंदर बैठा तो शोफर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जवरात ने सतून के साथ खड़े मंजर देखा, यहाँ तक कि उसकी कार रूश पे चलती गेट पार कर गई। मैम, कार तैयार है। फियोना ने सामने खड़ी कार के बारे में याद दहानी कराते हुए उसे पुकारा, जो गर्दन में मोतियों की लड़ी पे उंगली फेर रही थी। बाल जोड़े में बांधे और लंबी कमीज पे सफ़ेद फिटनिट मिनी कोट पहने वो सोच में गुम खड़ी थी।
पे यकायक ज़ीनें उतरने लगी। फियोना पीछे आई तो वह जरा रुकी। घूर कर उसे देखा। फियोना के कदम मुंजमद हो गए। फौरन सर झुकाकर पीछे हो गई। जवारात ज़ीनें उतरी, सब्ज़ाज़ार अबूर किया, घूम कर घर के उक्कब में आई। सफ पहाड़ी यहाँ नशेब में ढल जाती। वो कदम कदम उतरती नीचे नेक्सी तक आई। दरवाज़ा खटखटाया। चंद ही लम्हों में वो खुला तो फारिस नज़र आया। वो ट्राउज़र और पूरी आस्तीन की टी शर्ट में मलबूस था। काफ़ी पहले का उठा हुआ लगता था। उसे देखकर आंखें सेक्टरी और तुम्हें से फिर पीछे हुआ। आइए, सुबह व खैर। वो मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। बारीक हील से चलती राहदारी अबूर करके लिविंग रूम में आ गई, जिसके साथ ओपन किचन था। घूम कर इतराफ़ का जायज़ा लिया। घर को काफ़ी रिनोवेशन की ज़रूरत है और सफाई की भी। तुम इजाज़त दो तो मैं फियोना को भेज दिया करूँ। किचन काउंटर के साथ टिक लगाकर खड़े उसने फारिस को मुखातिब किया। ज़रूरत नहीं। वो आगे आया, चाय तले आंच बंद की और ऊपर कैबिनेट से शीशे का गिलास निकाला। तरताशा के जहेज़ के बर्तन, जिनमें से अक्सर डिब्बा पैक थे। गिलास नल से धोया और उल्टा कर स्टैंड पर रखा। फिर फ्रिज तक आया। जवारात सीने पे बाजू लपेटे, एक हाथ बदस्तूर गर्दन के मोतियों पे फेरती मुस्कुरा कर उसे देखती रही। एक काम था तुमसे, दोपहर को मुझे जुमर के घर ले जाओगे? फ्रिज से जूस का डिब्बा निकालता फारिस लम्हे भर को रुका, फिर दरवाज़ा बंद करता काउंटर तक आया। चेहरा वैसे ही सपाट रहा। क्यों, ड्राइव कहाँ गया है आपका? तुम्हें मेरा ड्राइवर बनने पे इतराज़ है क्या? नहीं, मुझे काम से जाना है दोपहर में। वो शीशे के गिलास में जूस का डिब्बा उंडेल रहा था। नौरंगी रस से गिलास भरता क्या? किधर जाना है? एक दोस्त से मिलने। ये तो और भी अच्छी बात है। जाते हुए मुझे ड्रॉप कर देना और वापसी पे पिक कर लेना। फारिस ने गिलास उसे पेश किया तो उसने पकड़ते हुए शाने झुकाकर गोया बात ख़त्म कर दी। बहुत अच्छा। वो मुड़कर चूल्हे तक आया और मग में अपनी चाय उंडेलने लगा। मैंने यूसुफ साहब को बताया था कि तुम मेरे साथ आओगे। वो चाहते हैं तुम मैं खाना उनके साथ खाएं। काफ़ी खुश हुए थे तुम्हारा सुनकर। फारिस ने चौंक कर उसे देखा और केतली वापस चूल्हे पर रखी। आप यूसुफ साहब से मिलने जा रही हैं? जूस का घूंट भरकर मुस्कुराई। जुमर के रिश्ते के लिए उन्होंने मुझे कह रखा था। 2 प्रपोजल हैं, वही बताने हैं उनको। वो मुकाबिल काउंटर से टेक लगाकर खड़ा था। नजरें चाय पे झुकाते एक घूंट भरा। बोला कुछ नहीं। अंदाज अलबत्ता सुस्त था। जवारात उसकी आंखों पे निगाहें जमाए हुए थी। एक जज का है, उम्र 50 साल से ऊपर, पहली बीवी को तलाक दे चुका है, 3 बच्चे भी हैं। दूसरा मेरी कंपनी में मुलाजिम है, उम्र उसकी भी इतनी ही है, मगर पहली बीवी और बच्चे गांव में रहते हैं। कहकर उसने अपने हल्क में शीरी घूंट अंडेला और फारिस ने कड़वा घूंट। दोनों ने अपने अपने जाम नीचे किए तो नेक्सी में खामोशी छा गई। तुम्हें तो मालूम है जुमर के वालिद बीमार रहते हैं। अपनी बेटी की बहुत फिक्र है उनको। वो है भी गुर्दा की मरीज़। जाने कब तक ये अतियाशुदा गुर्दा चल पाए। फारिस ने कुछ नहीं कहा। एक घूंट मज़ीद भरा। जवारात ने कदरे बेचैनी से उसकी आंखें देखी। तुम्हें शायद मेरी बातें में दिलचस्पी नहीं है। ओह, ये मत कहना कि तुम अभी तक जुमर से पुराना बुक्स पाले हुए हो। अब तो वो तुम्हारे खिलाफ बयान वापस ले चुकी है। अब तो भूल जाओ। फारिस ने चौंक कर उसे देखा। जवारात ने मसनूई हैरत खुद पे तारी की। ओह, तुम्हें नहीं मालूम था? जज ने तुम्हें बरी कर दिया तो उसने भी तुम्हारे बारे में कही हर बात वापस ले ली। उसके वालिद, निदरत, सादी, सबके आगे कही उसने ये बात कि वो अब तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। इसीलिए उसने पिछले हफ्ते मुझे अपने घर से निकाला था। वो संजीदा तल्खी से बोला तो जवारात लम्हे भर को चुप हो गई। फिर लापरवाही से शाने झुकाए। ये इंसानी फितरत है। यकीन के करीब तर होकर भी शक आखिरी झटका ज़रूर लगाता है पूरी कुव्वत से, मगर उसके बाद अमन हो जाता है। व्हाटएवर। चंद लम्हे मज़ीद खामोशी से गुजर गए और फिर वह ज़रा सा खनकारी। तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? नहीं, मैं घर नहीं छोड़ रहा, अगर ये आप पूछने आई हैं तो। कैसी बातें करते हो हनी? मैं तुम्हें यहाँ देखकर सबसे ज़्यादा खुश हूँ।
تمہیں یہی رہنا چاہیے، بلکہ جاب سٹارٹ کرو، کوئی شادی کرو، زندگی کو سیٹل کرو۔ ایک طوفان تھا، آیا اور گزر گیا، اس سب کو بھول جاؤ۔ مسز کاردار، طوفان کے گزر جانے سے جڑ سے اکھڑے درخت واپس نہیں لگ جایا کرتے۔ تو نئے بیج بو، نئے رشتے بناؤ، شادی کر لو فارس، ورنہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ میرے پاس اور بہت کام ہے، وہ تلخی سے کہتا، آخری گھونٹ اندر اڈیلتا مڑ گیا۔ جواہرات ذرا جوس بچا کر گلاس کاؤنٹر پہ رکھا، اس کا شانہ تھپکا اور دوپہر کو ملتے ہیں کہہ کر آگے نکل گئی۔ فارس آنکھوں میں ناپسندیدگی لیے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔